अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे बेसिकली वो है फेस स्पेस टर्म, माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। सो द फर्स्ट टर्म इज़ फेस स्पेस। फेस स्पेस को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी स्पेस को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी स्पेस। सो बेसिकली ऑर्डिनरी स्पेस वो स्पेस है जिसमें किसी भी पॉइंट को या पार्टिकल को हम कैसे स्पेसिफाई या रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट। अगर एक स्पेस में पॉइंट जो है उसको हम कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग ओनली द पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो दैट स्पेस इज नोन एज ordinary space, whereas the phase space can be defined as a space in which a point can be represented or specified by a particular position and momentum is called phase space. फेस स्पेस में क्या है कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट। अगर दोनों तरह के कोऑर्डिनेट जो है पार्टिकल के पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो दैट स्पेस इज नोन एज फेस स्पेस। सो इफ वी टुक द सिस्टम इन द 3 dimension, so what will be the coordinate in ordinary space, what will be the parameter in ordinary space? So there will be 3 parameter in ordinary space if we take the system in 3 dimension. So the position coordinate here will be dx dy, यानी कि position along x axis of a particle or point, position along y axis, position along z axis. So there will be only 3 parameter in ordinary space, dx dy and dz. But in the case of phase space there will be 6 parameter involved. Here we can see dx dy dz. This show the position coordinates of a point or a particle in 3 dimension system. Dx shows the position of a coordinate along x axis, y axis and z axis. एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करें, डी पी एक्स, डी पी वाई एंड डी पी जेड. सो हेयर वी कैन सी देयर विल बी 6 पैरामीटर, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इन द फेस स्पेस there will be 6 parameter involved to specify or represent a particular point. So the volume of the phase space of a cell can be defined by described as d tau is equal to the product of position coordinate. Here is the product of position coordinate dx, dy and dz, and here is the product of momentum coordinates dpx, dpy and dpz. So according to Heisenberg uncertainty principle, the product of the distance and momentum is given as dx into dpx is greater or equal into will be equal to h cut. According to uncertainty principle, एक वक्त में पोजीशन और मोमेंटम जो है एक्यूरेटली जो है कैन नॉट बी मेजर्ड. So the product of both variables will be equal or greater than h cut. So dx into dpx is equal to h cut, dpy into dy is equal to or greater than h cut, dpz into dz is greater than h cut. So here we can put the value. Here we see the product of dx into dpx will be equal to h cut. So we put the value here, h cut. So next term is dy into dpy. So here is the term dy and next term is dpy. So the product of both terms will be equal to h cut and next h cut. So the volume of the phase space of a cell is equal to d tau is equal to or greater than h cut cube. So we can say that a point in phase space is actually a 6-dimensional cell whose minimum volume is of the order of h cut cube. So minimum volume उसका कितना होगा, h cut cube. Next term is ensemble. बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम जिन सिस्टम को डील करते हैं वो लार्ज सिस्टम होते हैं, दैट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा. सो ensemble जो है
उसको अगर हम स्टैटिस्टिकली अगर किसी सिस्टम को हम डील कर रहे हैं, कोई किसी भी सैम्पल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस सैम्पल को, उस स्टैटिस्टिकल सैम्पल को जो है इंजैम्बल कहते हैं। ये 1901 में जे विलर्ड गिब्स जो फिजिक्स था, उसने स्टैटिस्टिकल सैम्पल को इंजैम्बल का नाम दिया था। सो बेसिकली इंजैम्बल इज़ व्हाट? Ensemble is a statistical sample. So here is the three types of ensemble. The first one is microcanonical ensemble, the second one is canonical ensemble, and third one is grand canonical ensemble. Microcanonical ensemble वो में कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें एनर्जी और मैटर जो है इंटरचेंज नहीं होते विद सराउंडिंग। और कैनोनिकल इंजैम्बल में क्लोज सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो है एनर्जी तो है वो इंटरचेंज हो जाती है विद सराउंडिंग, बट मैटर डू नॉट इंटरचेंज विद सराउंडिंग। और ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल में ओपन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बोथ एनर्जी एंड मैटर विल बी एक्सचेंज और इंटरचेंज विद द सराउंडिंग. So first we study the microcanonical ensemble. So microcanonical ensemble can be defined as: microcanonical ensemble is the collection of identical replicas of a physical system, for example gas, which is made up of non-interacting structureless particles isolated from the rest of world. क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि माइक्रोकैनोनिकल इंजैम्बल में आइसोलेटेड सिस्टम इन्वॉल्व है। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो बेसिकली आइसोलेट होते हैं सराउंडिंग आउट ऑफ वर्ल्ड। सो उसमें जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, जो हम सिस्टम ले रहे हैं, वो क्या उसमें कौन से पार्टिकल्स होंगे? नॉन इंटरैक्टिंग, आपस में वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, और सेम आइडेंटिकल रेप्लिकाज मीन सेम ही टाइप के पार्टिकल्स जो हैं वो सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे. So here we can see it is here we take a cubic system in which gas particles are involved. So हर पार्टिकल की जो है इस क्यूब सिस्टम में जो है एनर्जी और मोमेंटम जो है वो डिफरेंट होगा. सो एनर्जी रेंज विल बी फ्रॉम E टू E+D. एनर्जी जो है वो वेरी करती रहेगी, बढ़ती रहेगी पार्टिकल्स की कोलिजन के बाद. और इस पूरे सिस्टम का जो है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है. और इसमें फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो हर पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम डिफरेंट होने की वजह से हर पार्टिकल जो है डिफरेंट एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. So according to quantum mechanics, the total energy of the system is the sum of the energy of individual particles. So quantum mechanics के अकॉर्डिंग जब हम टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की निकालते हैं जिसमें n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम अगर हम अपने सिस्टम को 3 डायमेंशन में लेते हैं, सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू E ऑफ n इज इक्वल टू h cut स्क्वायर ओवर 2m इंटू 2 ओवर L स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ NiXN जो है यहाँ पर. नेक्स्ट टर्म इज़ माइक्रोस्टेट. माइक्रोस्टेट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज. जैसे कि नाम से शो हो रहा है माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ माइक्रोस्टेट, and macrostate involve the macro properties related to the microscopic particles. So microstate can be defined as a state where all the parameters of constituent particles are specified, or it can be defined as the state which is described by the energy level. So microstate is used to specify the position and momentum coordinates of particles in a system. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक सिस्टम लिया है, उसमें गैस पार्टिकल्स मौजूद है. जैसे कि हमें पता है कि गैस पार्टिकल जो है हमेशा रैंडमली मूव करते होते हैं, और आफ्टर कोलिजन इनकी एनर्जी और मोमेंटम भी जो है वो चेंज हो जाता है. सो यहाँ पर जो पार्टिकल सिस्टम में है इन्वॉल्व है, उनका मोमेंटम और एनर्जी जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है. सो हाउ मैनी पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन दैट सिस्टम एंड हाउ देयर एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी चेंज, these all terms will be included into the microstate.
और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कि इस सिस्टम का अगर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो मैक्रो स्टेट में आ जाएंगे ये पैरामीटर्स के, क्योंकि जो है अगर मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलाइड कर रहे हैं और उसके बाद एनर्जी और उनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो हमारे सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है वो पहले जैसा ही रहेगा। तो ये जो पैरामीटर्स अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, इनको हम मैक्रो स्टेट से डिफ़ाइन करते हैं। और माइक्रो स्टेट में जो है हम पोजीशन एंड मोमेंटम एंड एनर्जी कोऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम माइक्रो स्टेट टर्म यूज़ करते हैं। So, microstate is used to specify the position and momentum coordinates of particles in the system. Macrostate can be defined as a state of system where distribution of particles over energy level is specified. मैक्रोस्टेट में हम बेसिकली हम जो है मैक्रोस्टेट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम जो है अप्रॉक्सीमेशन दे सकते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स जिनकी डिफरेंट एनर्जी रेंज है वो कितने जो है वो किस एनर्जी लेवल में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इट इंक्लूड्स डिफरेंट लेवल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग पर्टिकुलर energy. So it can also be defined as the state of system described under condition of external parameters such as volume, pressure and temperature. So अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हम सिंपल सी एग्जांपल लेंगे डाइस की। अगर हमारे पास 2 डाइस हैं और अगर हम फॉर एग्जांपल हमें 6 नंबर लाना है, हमें 6 चाहिए, और अगर हम दोनों डाइस को थ्रो करेंगे तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी टू गेट द नंबर 6? देयर विल बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। द वन इज़, एक डाइस में हमारे पास 2 आए और दूसरे में 4 आए तो हमें नंबर 6 मिल जाएगा। सो वन इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 + 4, अदर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 + 3 एंड नेक्स्ट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 + 5 एंड नेक्स्ट इज़ द 4 + 2 एंड 5 + 1। अगर हम इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 6 को ऑब्टेन करने के लिए, जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, इसको हम माइक्रो स्टेट कंसीडर कर सकते हैं कि हमें एक, और ये जो 6 है यहाँ पर हम इसको एक किस्म का मैक्रो स्टेट कंसीडर कर रहे हैं कि टू गेट द मैक्रो स्टेट वी कंसीडर डिफरेंट नंबर्स ऑफ माइक्रो स्टेट। और अगर इसी तरह अगर हमें 8 नंबर चाहिए तो हमारे पास 2 डाइस हो, तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टू गेट द नंबर 8? हेयर विल बी द डिफरेंट पॉसिबिलिटी 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, 7 + 1. So there will be basically 7 possibilities to arrange the numbers to obtain the number 8. So there are possibilities to get the number 8 and 6, different possibilities. So basically ये जो different possibilities हैं ये मतलब एक नंबर अचीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? माइक्रो स्टेट्स का नाम दे रहे हैं। तो बेसिकली माइक्रो स्टेट में क्या होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो डिफरेंट एनर्जी, जैसे पार्टिकल्स एक सिस्टम में गैस पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो कुछ पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, कुछ पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो पार्टिकल्स जो है अकॉर्डिंग टू एनर्जी एंड मोमेंटम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ नोन एज माइक्रो स्टेट, and the whole parameter like pressure, temperature and volume of the system is known as macro state. So the number of microstate in a given macrostate is also known as degeneracy or statistical weight. एक मैक्रो स्टेट में जितनी माइक्रो स्टेट होंगी उसको हम डिजेनरेसी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ डाइस, here we got the number 6 by achieving almost 1 2 3 4 5 possibilities. So these 5, here we can see there will be 5 microstate to get the number 6. So the number of microstate in a macro state is known as degeneracy or statistical weight.
So if we consider Ni are the number of particles in the gas system and Gi is the number of degenerate one particle energy eigenstate included in the in ith energy intervals, so thermodynamical probability can be defined as thermodynamical probability भी क्या है कि number of microstate in the given macrostate is known as thermodynamical probability. इसको हम पहले भी पढ़ के आए हैं और हम थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी को W से शो करते हैं, W मैक्रो. सो इफ वी सपोज देर विल बी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो ये पार्टिकल जो है अपने अपने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो हम थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? here we can see n1 n2 n3 are the number of particles that arrange according to energy level in n1 n2 capital N1 capital N2 n3 and so on. So in mathematical form we can write the thermodynamical probability as W macro is n factorial capital N, जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज हो रहे हैं यानी कि एक मैक्रो स्टेट, और n1 n2 जो है यहाँ पर क्या शो करवा रहा है? माइक्रो स्टेट शो करवा रहा है. सो W macro is equal to n factorial over n1 factorial n2 factorial n3 and ni factorial, so on. And G1 is the degeneracy according to particle n1 n2 and so on. So in summation form we can written as the macro state W is equal to n capital N factorial summation Gi over ni factorial. So this is the formula of thermodynamical probability. Thank you. Allah Hafiz.